Good morning, students. Our today's chapter is The Address by Marga Minko, and this chapter is the chapter 2 of your book Snapshot. Uh, this is our poet, the Marga Minko, and here is some information about her. That Marga Minko is a Dutch journalist and author. She lives and works in Amsterdam. She was born on March 31, 1920, in the village of Ginneken in the southwest of the Netherlands. As a young girl, she moved to Breda, a town near her birthplace, together with her parents, her brother Dave, and other family members. Okay, now let's see that what do you mean by the Dutch journalist? Actually, she belongs to Netherlands, or we can say Holland also, and the language of the Holland or the Netherlands is Dutch. That's why she was called as a Dutch journalist. Okay, let's see another things. Margot Minkow is the only member of her immediate family to have survived the Second World War. Her father, mother, brother, and his fiancée, her sister Betty, and husband all were deported to the concentration camps. So it's very important to note here that the story revolves around the Second World War when the Germany invaded the Holland and many of the Jews fled in fear to the other countries. Okay, so let's learn something more about this. During World War II, the Germans, or you can say the Nazis under Hitler, invaded Holland. Germany attacked on Holland, where the 90% of the people were Jews. And many of these Jews fled in fear to the other countries. You know that Jews are the people who belong to a particular religion. That's why they are called the Jews. They fled to the other countries. Thousands were imprisoned in the concentration camps, and a woman and her little daughter had also to leave their home. The woman left all her things with a woman known to her, and after some time, the woman died. Okay, so this story revolves around the Second World War, what problems faced by the narrator, because now she was only survivor of her family, and no one returned from the concentration camps even after the World War from her family. So the characters we have in this story are our narrator, that's Marga Minko, Mrs. S, that is the mother of the narrator, then Mrs. Darling, an acquaintance of the narrator's mother, and a girl of 15, that is the daughter of Mrs. Darling. Now, the word acquaintance means the person who are known to us, जो जान पहचान वाले होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं acquaintance. They are not our relatives, but we just know them. So, let's see the basic theme of this chapter. This story is of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. Okay, सो बेसिकली स्टोरी में है क्या है कि जो डॉटर है वो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स के लिए जाती है, ठीक है, और मदर को अपनी बिलोंगिंग्स अपनी किसी एक्वेंटेंस को देनी पड़ी थी ड्यू टू दी वॉर, क्योंकि उन्हें वो जगह छोड़ के जाना पड़ा था जहाँ वो रह रहे थे, उन्हें वो शहर छोड़ के जाना पड़ा, कंसंट्रेशन कैंप्स में जाना पड़ा, तो अपने घर बार छोड़ने पड़े। तो जो चीज़ें थी उसे लगा था कि वो अपनी जो ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, वो दे जाए वो किसी के पास, और आफ्टर द वॉर वो ले लेगी, ठीक है। लेकिन उसकी मदर की डेथ हो जाती है और नरेटर अकेली बच जाती है, और फिर वो चीज़ों के लिए जब जाती है तो उसे मिसेस डॉर्लिंग देती है नहीं देती है वो हम देखेंगे। सो here are some real pics which shows the war in Holland. This type of atmosphere is at that time in the Holland. Then uh, here are some animation pictures which actually represent some conversation between Mrs. S and Mrs. Darling. So here the first dialogue is Mrs. S
You should give all of your precious item to me, as you might be asked to leave any time and you shall lose everything. Okay, so she is Mrs. Darling and she is Mrs. S. Okay, so here Mrs. Darling come to her and asked her. Then Mrs. S says that, Mrs. Darling, are you sure about this, as you might get in trouble for helping a Jewish family? Mrs. S, it is completely fine by me. After all, a friend in need is a friend indeed, and I insist you store your belonging at my house at Marconi Street, house number 26. This address is also very important. Marconi Street, house number 26. And thanks, Mr. Darling, for helping me out. I could have not asked for a bigger favor. ओके, सो ये उन दोनों के बीच में बात हुई थी. मिसेस डॉर्लिंग की इच्छा थी कि चलो वो उसकी बिलोंगिंग्स को ले लेती है और संभाल के रखेगी. उसने संभालने हैं यूज़ किए हैं. वी विल सी डैट लेटर. सो इन दिस पिक्चर आई एम ट्राइंग टू शो यू द fully furnished house of Mrs. S and all the antique pieces they have. Then this type of things, for example, expensive cutlery sets she had. Then more things about the kitchen, or another appliances, decorative pieces, antique pieces she gave to Mrs. Darling for the safety. So after the war, what happened? That Mrs. S is dead, but her daughter survives. So Mrs. when she then what happened, that her daughter went to Mrs. Darling's house, and Mrs. Darling acts like she don't know her and avoid the Mrs. S daughter, and the girl tries to get her belonging back. Okay, so this is a scenario after the war. After the war, what happened? That our narrator goes back to get back her belongings. But when she finds them, the object evoke memories of her old life. She decides to leave them all behind and resolves to move. ठीक है, तो हम देखेंगे ऐसा क्या हुआ था कि वो लेने गई वापस. फिर चीज़ों को उसने देखा, फिर उसने ये अपने माइंड में ये रेजोल्यूशन ले लिया कि वो आगे बढ़ेगी, चीज़ों को वहीं के वहीं छोड़ देगी. ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट हैपन. शी लेफ्ट, तो वो फर्स्ट टाइम जाती है तो फिर वापस आ जाती है, चीज़ों को भी नहीं लेके आती है. ठीक है, चलो देखते हैं एक्चुअली होता क्या है. सो दिस इज़ द पार्ट 1, द फर्स्ट मीटिंग. इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, it is narrated how the protagonist was given a cold reception when she went to her native place after the war in search of her mother's belonging. ओके, तो ये फर्स्ट टाइम है कि जब वो जाती है वहाँ तो उसे कोल्ड रिसेप्शन मिलती है. कोल्ड रिसेप्शन मीन्स उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है. जब वो मिसेस डॉर्लिंग का बेल, घर की जो डोर बेल थी उसे बजाती है, दरवाज़ा खुलता है, लेकिन जो मिसेस डॉर्लिंग है वो उसे अच्छे से रिसीव नहीं करती है. आफ्टर रिंगिंग द बेल ऑफ हाउस नंबर 46 इन मरकॉन स्ट्रीट, अ वुमन ओपन द डोर एंड ऑन बीइंग इंट्रोड्यूस द वुमन केप्ट स्टेयरिंग एट हर इन साइलेंस. ठीक है, तो जैसे वो इंट्रोड्यूस करती है कि मैं मिसेस एस डॉटर हूँ, तो वो उसे स्टेयर करती घूरती रहती है. देयर वॉज नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. ठीक है, वो उसे बिल्कुल भी पहचानने की कोशिश नहीं करती है. बट द वुमन वॉज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन. ठीक है, तो जिसने पहना था वो नरेटर पहचान लेती है कि उसने वही कार्डिगन, वही लॉन्ग स्वेटर डाला है जो उसकी मदर ने बनाया था या जो उसकी मदर पहनती थी. द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक. अब नरेटर को समझ में, नरेटर कुड अंडरस्टैंड, उसे लगता है, उसे लग रहा था कि मैं उसने कोई मिस्टेक नहीं की है क्योंकि वो चीज़ें अब सामने आ रही थी. शी आस्क्ड द वुमन वेदर शी न्यू हर मदर. तो उसने पूछा. द वुमन कुड नॉट डिनाई दिस. The narrator wanted to talk to her for some time, but the woman cautiously closed the door and the narrator stopped there for some time and then left the place. Okay, so what happened, जैसे पूछती है कि आप मेरी मदर को जानती हो, तो वो मना नहीं करती है, लेकिन बहुत ही उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है और उसे ये कहती है डैट शी वॉज बिजी एट दैट टाइम, या शी हैज़ नो टाइम टू टॉक टू हर, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर. ठीक है, ताकि घर में और किसी को ना पता चले, तो बहुत ध्यान से अपना डोर बंद कर देती है.
ओके, नरेटर वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहती है, उसके बाद वो चली जाती है। ओके, जाने के बाद क्या है, रिमेम्बरिंग द पास्ट। अब वो क्या वहाँ पे सोच रही है बैठ के। इन द सब्सिक्वेंट सेक्शंस द मेमोरीज ऑफ द नरेटर बायगोन डेज कम इनटू द लाइट। जब वो चली जाती है बाहर से तो उसे वो मेमोरीज जो उसने मदर के साथ बिताई थी, जो घर में वो चीज़ें देखी, वो सारा उसे फ्लैशबैक आता है। तो ये फ्लैशबैक पढ़ेंगे हम इसमें। हर मदर हैड प्रोवाइडेड द एड्रेस ईयर्स अगो ड्यूरिंग द वॉर एंड शी वेंट टू होम फॉर फ्यू डेज। शी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग। ठीक है, ये स्टोरी के फ्लैशबैक में चले गए हैं। इसमें बताया गया है कि नरेटर जो थी वो बाहर पढ़ती थी, जब कुछ दिन के लिए घर में आई थी तो उसने नोटिस किया, शी कुड फाइंड दैट वेरियस थिंग्स वर मिसिंग, कि कुछ चीज़ें घर में मिसिंग है। एट दैट टाइम हर मदर टोल्ड हर अबाउट मिसेस डॉर्लिंग। तब उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, जब उसने पूछा था कि हमारे घर की चीज़ें कहाँ हैं। शी हैपन टू बी एन ओल्ड एक्वाइंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर एंड लेटली शी हैड रिन्यूड कनेक्ट विद हर एंड हैड बीन कमिंग देयर रेगुलरली। ठीक है, तब वो रेगुलरली आने लगी थी। काफ़ी टाइम से उसने कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उसे रिन्यू किया, दोबारा से जान पहचान बनाई मिसेस डॉर्लिंग ने। ठीक है, और नरेटर देखती थी that every time she left their house she took something home with her. She told that she wanted to save all their nice possessions, and the next day narrator saw Mrs. Darling going out of their house with a heavy suitcase. She had a fleeting glimpse of Mrs. Darling's face. ठीक है, तो उसने देखा कि वो आ रही है, बार बार आ रही है, सूट केसेस को भर भर के लेके जा रही है सामान को। एंड उसने उसको अच्छे से देखा नहीं था, उसे याद नहीं था। यहाँ पे एक वर्ड है, शी हैड अ फ्लीटिंग ग्लिम्स। फ्लीटिंग का मतलब होता है हरिडली, ग्लिम्स की मतलब होता है झलक, जब जल्दी जल्दी में उसकी झलक उसे दिखी थी, थोड़ा सा फेस उसका दिखाई दिया था। एंड शी आस्क्ड हर मदर वेदर द वुमन लिव्ड फार अवे। एट दैट टाइम द नरेटर मदर टोल्ड अबाउट द एड्रेस दैट इज नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ठीक है, तो ये उसे याद आता है कि कैसे उसे एड्रेस का पता चला था, क्योंकि उसकी मदर ने खुद तो उसे बताया नहीं था, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगा नहीं था कि वॉर के बाद वो इतनी ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसकी बेटी ने पूछा कि ये कहाँ रहती है, तो उसकी मदर ने एड्रेस बताया। आफ्टर मैनी डेज द आफ्टर द वॉर नरेटर वॉज क्यूरियस टू टेक रिकॉर्ड ऑफ द पोजेशंस। वॉर ख़त्म हो गई, उसके सिचुएशंस नॉर्मल हुई, फिर जो है वो अपनी पोजेशंस के लिए जाती है और उसी नंबर पे जाती है। विद द इंटेंशन शी वेंट टू द गिवन एड्रेस। ठीक है, तो जो हमने पहले पढ़ा कि वो एड्रेस पे जाती है, लेकिन उसने पहचाना नहीं उसे बिल्कुल भी। ठीक है जी, नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड विजिट। फिर से वो एक बार जाती है, एक बार फिर से ट्राई करती है, देखते हैं इसमें क्या होता है। द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब द सेकेंड विजिट ऑफ द नरेटर एज द नरेटर फर्स्ट विजिट yielded नो रिजल्ट। ठीक है, फर्स्ट विजिट का कोई रिजल्ट नहीं आया था, सो शी प्लान टू गो वंस अगेन। ठीक है, इंटरेस्टिंगली अ गर्ल ऑफ 15 ओपन द डोर टू हर। सो दिस टाइम मिसिस डॉर्लिंग वॉज नॉट प्रेजेंट एट द होम, और उसकी जगह पे उनकी बेटी ने वो दरवाज़ा खोला। हर मदर वॉज नॉट एट होम। द नरेटर एक्सप्रेस हर विश टू वेट फॉर हर। ठीक है, अब नरेटर कहती है कि मैं वेट करना चाहती हूँ। द गर्ल accompanied her to the passage and narrator saw an old fashioned iron candle holder hanging next to a mirror. The girl made her sit in the living room and went inside, and narrator was horrified to find herself in a room she knew and did not know. अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है कि वो हॉरिफाइड फील कर रही थी एक ऐसे कमरे में जिसे वो जानती भी नहीं, जानती थी और जानती नहीं भी थी। ठीक है, जैसे वो एंटर करती है, उस घर में मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो वही थी जो उनकी अपनी थी। ठीक है, शी फाउंड हर्टसेल्फ इन द मिड्स ऑफ अ फैमिलियर थिंग्स विच शी लॉन्ग्ड टू सी अगेन बट विच ट्रबल्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे हम देखेंगे वो जो हमारा पहले एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि क्यों उसने रिजॉल्व ऐसे रेजोल्यूशन क्यों ले लिया कि वो चीज़ों को छोड़ देगी, उसका आंसर मिलेगा यहाँ पे। शी फाउंड हर्टसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ फैमिलियर थिंग्स। वो फैमिलियर थिंग्स के बीच में ही बैठी थी। विच शी लॉन्ग्ड, लॉन्ग मतलब होता है डिज़ायर, लॉन्गिंग, उसे जिसकी देखने की उसके पास इच्छा थी। बट विच ट्रबल्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, लेकिन वो चीज़ें एक ऐसे स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में थी कि जो उनकी वैल्यू थी उसके मन में वो ख़त्म होने जा रही थी। उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो रही थी, चीज़ों की जो वैल्यू उसको पहले थी, पहले उसने देखी नहीं थी। उसके माइंड में पहले बस यही था कि ये चीज़ें हमारी हैं। उसने अपनी मदर के साथ उन चीज़ों को देखा था, लेकिन जब उसने स्ट्रेंज एक अजनबी माहौल में देखा, उनको टेस्टलेसली अरेंज देखा, तो उसके बाद उसके माइंड में ये आया कि जो चीज़ें हैं ये अपनी वैल्यू खो चुकी है। इन चीज़ों की उतनी इंपॉर्टेंस उसके माइंड में उन चीज़ों की नहीं रही। शी हैड नो करेज टू लुक अराउंड हर
बट शी नो लॉन्गर हैड डिज़ायर टू पोजेस दैम, वो और उस घर में नहीं देखना चाहती थी, और उसकी जो डिज़ायर थी वो भी ख़त्म हो गई उन चीज़ों को पोजेस करने की, उनको पाने की. शी गॉट अप, walked to the door, left the room, and she resolved to forget the address and moved on. ठीक है, तो उसने रेजोल्यूशन लिया कि जो चीज़ें हैं, ये जो मेरी पोजेशंस हैं, इनको मैंने छोड़ देना और लाइफ में वो आगे बढ़ेगी, इन चीज़ों को साथ में लेकर वो नहीं बढ़ेगी. ठीक है, सो दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली द अबाउट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट और इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर, वॉर कैसा रहता है, कैसे सिनेरियोज रहते हैं, वो सब इस चैप्टर में बताए गए थे. दिस इज़ द स्टोरी एक्चुअली, and I am providing with the word meaning also. You can read line by line from your book, and if you have any queries, you can ask me.